Dear students, imagine and think about your last trip to an amusement park where you must have experienced a ride on a roller coaster on wheels placed on these tracks because it's going to give us an idea about to understand the Galileo's concept of motion or the Galileo's idea of motion. Students, the tracks on which these roller coasters are being placed is in U shape, and when the roller coaster falls from a particular height, the speed of the roller coaster keeps on increasing, moving downwards. And when it moves upwards in the upward direction on the other inclined plane, the people sitting on this roller coaster becomes terrified, and even the speed of the roller coaster keeps on decreasing. That means it retards. And when again it falls backwards, its speed keeps on increasing, and the same thing happens when it moves in this other track upwards. So based on that, we're going to understand what actually the Galileo's constant of motion is. So based on the Galileo, he took an inclined plane on which he rolled a marble, and when he rolled the marble, the velocity of the marble keeps on increasing, moving downwards. Okay, so there are various arguments which are proposed by the Galileo, and in the first argument, when a marble is rolled down from the left, you can see in this way, in this case there are two inclined planes which are placed in front of each other. So when a marble is rolled down from the left, it will go on moving, and its speed keeps on increasing, moving downwards. And when it is moved upwards, its speed keeps on decreasing, but it covers the same height on the other end. Okay, now in the second case, if the inclination of the planes is equal, that means जो इसका एंगल है और जो इसका एंगल है, जिस एंगल पे ये इंक्लाइन है दोनों प्लेन्स, अगर दोनों इक्वल हैं, in this case also they were equal. Now if they are equal in the both the inclined planes are equal, so the marble will travel the equal distances. That means the marble from this height has been falling from downwards, तो marble यहाँ से गिर रहा है, तो इस हाइट से जहाँ से गिरा है उस सेम हाइट तक वो मार्बल कवर करेगा अगर इंक्लाइन प्लेन्स जो हैं वो सेम एंगल पे हैं. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू डिक्रीज द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द राइट प्लेन, अगर मैंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस राइट प्लेन का थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, यू कैन सी इन द फिगर इट्स विजिबल, सो द मार्बल विल ट्रेवल फर्दर, द मार्बल थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ेगा लेकिन सेम हाइट कवर करेगा. The marble will move more upwards and it will cover the same height. And in the last plane, if I make the angle of this last plane horizontal, total 0, that means if I make the angle of this last plane 0, that means if I make the surface horizontal instead of inclined, the ball or the marble will keep on rolling, it will keep on moving, so the marble will travel forever to achieve the same height. The marble जो है वो चलता चला जाएगा same height तक पहुंचने के लिए. So once again I'm going to explain in Hindi for you so that you should be able to understand in your familiar and native language. So students, Galileo ने दो inclined plane लिए आमने सामने जो रखे गए, दोनों का inclined angle सब लगभग सेम रखा गया. पहले केस में जब एक मार्बल को h हाइट से फॉल नीचे गिराया गया तो मार्बल तेजी से नीचे मूव करेगा और उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी. दैट मीन्स इट विल एक्सेलरेट. ठीक है. फिर मार्बल सेम हाइट तक ऊपर जाएगा दूसरे एंड तक और वो सेम हाइट कवर करेगा लेकिन उसकी स्पीड डिक्रीज होगी. ठीक है, लेकिन सेम हाइट कवर करेगा बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस अर्लियर बाय दिस मार्बल, बिकॉज ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन. नाउ आफ्टर दैट, अगर इंक्लिनेशन दोनों का इक्वल है, जैसे मैंने आपको बताया, सेम चीज होगी, गिरेगा ऊपर हाइट से और सेम हाइट तक कवर करेगा. ठीक है. नाउ अगर मैं सेकेंड इंक्लाइन प्लेन का थोड़ा सा एंगल डिक्रीज कर दूं इसको, तो जो मार्बल है वो सेम हाइट तक जाएगा लेकिन उसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. मतलब यहां से आता मूव करने के लिए थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा लेकिन सेम हाइट तक जाएगा. ठीक. नाउ व्हेन आई मेक दिस इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल, जब मैं इस इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो जो मार्बल ऊपर से गिर रहा होगा उसकी स्पीड तो इंक्रीज हो रही है लेकिन एक्सेलरेट भी हो रहा है, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम मूव करेंगे तो कॉन्स्टेंटली मूव होता जाएगा. ठीक है. नाउ वन पॉइंट टू नोट इज दैट द सरफेस विच इज यूज्ड बाय द गैलीलियो इज एन फ्रिक्शनलेस सरफेस. गैलीलियो जो सरफेस यूज करा है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है और इस पे हम देख रहे हैं कि जो बॉल है, जो मार्बल है, वो कॉन्स्टेंटली रोल होता जा रहा है.
ठीक है ना. So in this case, the Galileo concluded that whenever a body is in motion, it tends to remain in the same state unless and until an external force is being applied. यही हमारा न्यूटन्स का पहला लॉ है. मीन्स अगर जो बॉल पे रोल हो रहा है वो रोल होता जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई भी फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा है. जो मैंने आपको बताया अर्लियर, कोई अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा है. जैसे कोई जो फोर्स अपोज करता है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं. तो जो बॉल है, जो मार्बल है, वो लगातार रोल होता जाएगा. और इस वजह से हम ये कंक्लूड करेंगे कि we need an unbalanced force to change the motion of the marble. अगर मार्बल मूव कर रहा है किसी स्पीड से, तो वो उसी स्पीड पे चलता चला जाएगा, उसे किसी भी फोर्स की आवश्यकता नहीं है उस मोशन में रहने के लिए. सो इस वजह से, बट पढ़ते हैं हम गैलीलियो का इन्फ्रेंस क्या है. वी नीड एन अनबैलेंस्ड फोर्स टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल, बट नो फोर्स इज रिक्वायर्ड व्हेन द मार्बल इज मूविंग यूनिफॉर्मली. कहने का मतलब ये है, अगर हमें मोशन चेंज करना है मार्बल का, अगर वो किसी स्पीड से चल रहा है, पहले मूव कर रहा है, अगर उसका मोशन चेंज करना है, मतलब उसे रेस्ट में लाना है या उसकी स्पीड इंक्रीज करनी है, तो हमें अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता है. लेकिन किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं है अगर मार्बल यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, वो लगातार चल रहा है, उसे किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, वो मूव करता जाएगा अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है. इट इज अ कंडीशन. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड इफ नो फोर्स एक्ट्स अपॉन देम. ऑब्जेक्ट्स जो हैं कांस्टेंट स्पीड में मूव करते रहते हैं अगर कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता. ये गैलीलियो का इन्फ्रेंस था जो न्यूटन ने अपने लॉ में एक्सेप्ट करा और इंट्रोड्यूस कर दिया अपना न्यूटन का पहला लॉ. सो हमारा कंक्लूजन क्या है, आप देख सकते हैं सारे फिगर्स साइमल्टेनियसली डिफरेंट फिगर्स हैं. सर 4 केसेस हैं. सो सारे एक जैसे आपके सामने रख दिए मैंने. सो देख सकते हैं इस तरह से बॉल रोल कर रही है और ऊपर जा रही है. सेम हाइट से जाएगी, इसमें भी सेम हाइट से जाएगी लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और इसमें भी सेम हाइट से जाएगी लेकिन और डिस्टेंस कवर करेगी. और फाइनली जब सरफेस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो वो बॉल मार्बल लगातार रोल होता जाएगा. दैट मीन्स इट विल बी इन अ परपेचुअल मोशन, लगातार मूव करता रहेगा. सो कंक्लूजन हमारा ये निकलता है इससे कि अ बॉडी कंटिन्यूज टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन path unless some external force compels it to change the state. So according to your comfort level, students, write the theory of the Galileo concept briefly and its figure. So now you will be able to understand the concept of this roller coaster also, and it's very terrifying for me. I find it very terrifying. I get terrified when I see this roller coaster. I've never been to a roller coaster, but you must have been to a roller coaster because you are a very brave students and you are very amused to see the example. And you please, when the time becomes suitable, please visit a amusement park to have a fun, like Fun City. Okay, thank you students, thank you very much.